Good morning friends, I am Sunana from the Maths Infinity. Today our topic is fraction. We are discussing the READ syllabus. This one is our second topic. In this topic we will discuss about what is fraction, then type of fraction, then comparison of fractions with the same denominator with different denominator, then arrange this fraction into ascending or descending order. After that which fraction is greatest and which one is smallest. So we are starting with fraction. What is fraction? Fraction is a part of number. Fraction is a part of number. That means we are not taking complete number. We are taking few part of number like 1 by 2, 3 by 4, 6 by 7, like this way. Either we can say that a number in form of a number of form a by b. b cannot be equal to 0 because अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो ये नंबर क्या नॉट डिफाइंड हो जाएगा. So a number of form of, we can say number is a fraction is a part of number. Either we can say that a number is in form of a by b is called fraction. A by b means we are taking 3 by 4, where this part is known as numerator. This part is known as numerator and this part is known as denominator. This part is known as denominator. हिंदी में अगर हम बोले तो अंश, अपर पार्ट अंश एंड हर, लोअर पार्ट इज हर. So this is the definition of fraction. So after that we are taking type of fraction. We are taking type of fraction. There are three type of fractions. First one is proper fraction. Type of fraction. First one is proper fraction. Second is improper fraction. And our third one is mixed fraction. Mixed fraction. Third one is mixed fraction. What is proper fraction? A number where numerator is less than the denominator. Numerator is less than the denominator. 7 by 9, 10 by 30, where numerator is less than the denominator. Improper fraction is opposite of this, where numerator is greater than the denominator. We are taking 4 by 3, 8 by 5, where numerator is greater than the denominator. Now mixed fraction is the combination of a whole number and proper fraction. 1 by 2, not improper fraction. Understand? A whole number and proper fraction. 3, 5 by 8. A whole number and proper fraction. Whole number and proper fraction. अगर यहाँ improper fraction लेते हैं तो क्या होगा? We are taking 4, 3 by 2. 3 by 2 is an improper fraction because we can change improper fraction into mixed fraction. Improper fraction को हम mixed fraction में change कर सकते हैं. कैसे? 8 को डिवीजन सिंबल के अंदर लिया, डिवीजन ही होती है ये. अगर हम बाई का 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5, 8 minus 5 3. So mixed fraction is 1, 3 by 5. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं. सो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हुई? इफ होल नंबर
एंड प्रोपर फ्रैक्शन, होल नंबर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर हम राइट करते हैं तो वो रॉन्ग होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं कि विच वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो हमें ऑप्शंस गिवन होंगे, उनमें से कोई एक राइट होगा कि ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, अदरवाइज दिस वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, दिस वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, दिस वन इज नॉट मिक्स्ड फ्रैक्शन, बिकॉज यहाँ उसने इम्प्रॉपर का पार्ट लिया। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। नाउ नेक्स्ट वन वी आर डिस्कसिंग addition and subtraction, addition and subtraction of fractions with same denominator and with different denominator, like 1 by 4 plus 3 by 4. It means we have to make addition but denominator is same. अगर denominator same है तो कोई problem नहीं है, हम 3 plus 1 4, 4 answer is 1. If denominator is same then we have no problem, we simply add these numbers. Why? Because we have to take LCM of these two number. हमें इनका क्या लेना है, LCM। तो 4 और 4 का LCM क्या होगा, 4। तो इन 1 by 4 को क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को LCM से मल्टीप्लाई, 4 से 4 कैंसल आउट, यहाँ क्या रह गया 1। सिमिलरली 3 by 4 LCM से मल्टीप्लाई किया, 4 से 4 कैंसल, 3, 1 plus 3 is equal to 4 by 4, आंसर इज 1। आप LCM लेके कीजिए या डायरेक्ट न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए। दिस वन इज और यहाँ ऐड नहीं करना, 4 plus 4 कहीं ऐड कर दो, ओके। दिस वन इज एडिशन विद सेम डिनोमिनेटर। नाउ वी आर टेकिंग विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, 1 by 4 plus 3 by 2 विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। सो हमें यहाँ क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम लीजिए, 4 और 2 का एलसीएम 4, 1 by 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 1, 3 by 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 6, 7 by 4। ऐसे हम इनको ऐड करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं कि एलसीएम डिनोमिनेटर इज सेम, आइदर डिनोमिनेटर इज डिफरेंट, वी हैव टेक एलसीएम। सेम में भी एलसीएम लेके कर सकते हैं, बट वी नो दैट एलसीएम 4 ही आएगा, तो हमें न्यूमरेटर को ऐड ही करना है। इफ डिनोमिनेटर इज डिफरेंट देन टेक देयर एलसीएम। नाउ आफ्टर दैट कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में क्या करना है, 1 by 4, 5 by 7, which one is greater? 1 by 4, 5 by 7, which one is greater? Either second example we are taking 1 by 2, 7 by 2, which one is greater? If denominator is same, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कोई प्रॉब्लम, जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वैसे यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ डिनोमिनेटर इज सेम, सिर्फ आप उनके न्यूमरेटर चेक कीजिए, विच वन इज ग्रेटर, 1 और 7, 7, so 7 by 2 is greater than 1 by 2. If denominator is different, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तब हम क्या करेंगे, देन वी मेक क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 into 1 and take space here, 4 into 5, 7 1s are 7, 5 4s are 20. Which one is greater? 20. So this fraction is also greater. This fraction is also greater. 5 by 7 is greater than 1 by 4. If they have same denominator, then we have no problem. हमें सिर्फ उनके numerator check करने। If they have different denominator, then we make cross multiply here. Cross multiply पे जो number greater आता है वही हमारा आंसर होगा। If we have negative sign here, इसमें अगर negative sign आ जाते तब रिवर्स हो जाएगा, -3 by 2, -5 by 2. They have same denominator, and one example we are taking -3 by 2, -1 by 5. Which one is greater? We are taking two examples with same denominator with different denominator. We have same denominator, then we have no problem. We consider only numerator. Which one is greater, -3 or -5? We know that नेगेटिव में जितना छोटा नंबर होगा उतना ही बड़ा। सो जैसे 5 इज ग्रेटर देन 3, वैसे ही जैसे ही हम उसमें नेगेटिव साइन लगाते हैं हमारा 3 क्या हो जाएगा, बड़ा। -3 इज ग्रेटर देन 0, भी -3 से बड़ा है, नंबर लाइन पे हमने शो किया हुआ है। सो -3 by 2 इज ग्रेटर देन -5 by 2. इफ डिनोमिनेटर इज डिफरेंट देन सेम क्रॉस मल्टीप्लाई। सो -3 into 5, टेक स्पेस हियर, -1 into 2, so -15 -2. Which one is greater? We know that नेगेटिव में जितना छोटा नंबर होगा उतना ही लार्ज होता है, तो -2 is greater than -5. So -3 by 2, -1 by 5. This fraction is greater.
ये भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि कंपैरिजन कीजिए कि विच वन इज ग्रेटर विच वन इज स्मॉलर, ये साइन पुट करना होता है। नाउ फाइंड अरेंज फ्रैक्शन इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें फ्रैक्शन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। अगर स्कूल लेवल पे हम ये क्वेश्चन करें तो बहुत लेंथी कैलकुलेशन होती है। जैसे हम एक एग्जांपल देखिए, वी आर टेकिंग वन एग्जांपल 5/6, 3/4, 5/8, 6/7। और स्कूल लेवल पे हम इस क्वेश्चन को करते हैं, मेथड वही रहेगा। इफ वी हैव सेम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो सिर्फ न्यूमरेटर को चेक कीजिए, बट यहाँ तो डिफरेंट डिनोमिनेटर, सो वी विल टेक एलसीएम। एलसीएम बाय विच दिस मेथड इज कॉमन डिवीजन मेथड। 6, 4, 8, 7. This method of finding LCM is common division method. This HCF and LCM we have in our previous video. You can check there. So we will divide by 2. 2 3s are 2 2s are 2 4s are and 7. Then two numbers are divisible by 2. 3 2 1s are 2 2s are then 7. And again by 2. 7, then by 3, and then by 7 1s are 7. So our LCM will be product of, हमारा LCM क्या होगा, इन सभी नंबर्स का प्रोडक्ट। 2 into 2 into 2 into 3 into 7। इन नंबर्स का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 168। Now what we have to do here, write all the four numbers 5/6, 3/4। ये स्कूल लेवल पे इस क्वेश्चन को, फिर हम इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक करेंगे 6/7। write all the four numbers, then put multiply sign here, put multiply sign here, multiply। ये हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन इजी कब होता है, जब डिनोमिनेटर सेम होगा। अगर डिनोमिनेटर सेम है दैट मींस हमें न्यूमरेटर चेक करना, तो हम ये एलसीएम क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। जितना इनका एलसीएम आएगा वो हम इनके डिनोमिनेटर में राइट करते हैं। 168 फाइनल रिजल्ट के डिनोमिनेटर में 168। नाउ 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 168 मिले, 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 168 मिले, तो हम 168 को इससे डिवाइड कर देते हैं, यही होगा। 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 168 मिले, तो हम 6 से 168 को अगर डिवाइड कर दे तो वो आंसर आ जाएगा 6 2s 6 4s सेम 24। एक्चुअल में हम क्या करें, 24 से मल्टीप्लाई 24 से डिवाइड, एक्चुअल में तो यहाँ 1 से ही मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो 6 into 24 is 168। नाउ मल्टीप्लाई हियर 5 4s 20, 1 5 4s 140। 28, 6 2s 12, 48, 6 8s 48। We multiply here by 4, 40, 5 2s 10, 140। Now same 168, by which number we multiply here, 4 को किससे मल्टीप्लाई किया, तो इसको डिवाइड कर दीजिए। 4 4s 16, 4 2s 8, 48 से 42 से मल्टीप्लाई किया, 42 से डिवाइड किया, 3 2s 6, 4 3s 12। इन दोनों नंबर्स में डिनोमिनेटर सेम हो गए, यही करेंगे हम, इन चारों में डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। आफ्टर दैट 8 को किससे डिवाइड कर दीजिए, 8 2s 8 1s 21 से, 5 2s 10, 7 से कीजिए, 7 2s 14, 7 4s 28। सो 24 से मल्टीप्लाई, 24 से डिवाइड, डिनोमिनेटर सेम हो गया सब में। सो दिस विल गिव्स अस 6 4s 12 प्लस 2 140। तो इन चारों में क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया सब में। अब हम चेक करेंगे कि विच वन, न्यूमरेटर को चेक करेंगे, जिसमें न्यूमरेटर सबसे पहले छोटा देन बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर में हम उसको राइट कर रहे हैं। नाउ इट इज नो नीड ऑफ दिस एलसीएम, सो वी आर रबिंग दिस। सो इन असेंडिंग ऑर्डर, ascending order. So first of all, smallest number, which one is smallest, 105. So write here 105 by 168. Then after 105 126, 126 by 168. Then 140,
by 168, 144 by 168. So 105 रिप्रेजेंट 5/8. इसको इक्विवेलेंट फॉर्म भी बोलते हैं. आप इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो वापस हमारी वही फॉर्म आ जाएगी ना. सो दिस वन इज आल्सो नोन एज इक्विवेलेंट फॉर्म. 5/8. आफ्टर दैट 126 रिप्रेजेंट्स 3/4. Our 140 represents 5/6, and last one is 144 represents 6/7. So this one is our ascending order. So we can put here sign this greater than, ये इससे बड़ा ये और इससे बड़ा. This one is our ascending order. ये करते हैं हम स्कूल लेवल पे. कितना लेंथी हो गया. इसी क्वेश्चन को अगर हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, बिकॉज हमें तो एग्जाम में सोल्व करके आने इस क्वेश्चन को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं हमारे. सो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है. दिस वन इज अवर फाइनल आंसर. इस क्वेश्चन में हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि विच फ्रैक्शन इज, राइट द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, राइट द लार्जेस्ट फ्रैक्शन. सो विच वन इज फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट. 5/8 इज स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन एंड दिस वन इज अवर लार्जेस्ट फ्रैक्शन. दिस वन इज स्मॉलेस्ट एंड दिस वन इज लार्जेस्ट. अब इसी क्वेश्चन को हम इजिएस्ट वे में कैसे करेंगे. शॉर्ट ट्रिक देखिए. शॉर्ट ट्रिक में क्या करना होता है, एज इट इज जो न्यूमरेटर है वो नंबर राइट कर दीजिए. न्यूमरेटर में जो नंबर है वो एज इट इज राइट कीजिए. जो हमारे न्यूमरेटर में थे वो नंबर एज इट इज राइट कीजिए. उसके बाद जो इनका डिफरेंस है वो इनके डिनोमिनेटर में. 6 - 5 1, 4 - 3 1, 5 - 3 8 - 5 3 एंड दिस वन इज 7 - 6 1. ये नंबर एग्जैक्ट क्या है 5. ये नंबर एग्जैक्ट क्या है, बिकॉज डिनोमिनेटर में 1 है, 1 की कोई वैल्यू नहीं है. एंड व्हेन वी डिवाइड दिस 0.0 अप्रोक्स वैल्यू वी आर राइटिंग 3 1 जा 3 2 23 6 1.6 एंड दिस वन इज 6. तो यहां से विच वन इज स्मॉलेस्ट नंबर, कौन सा स्मॉलेस्ट है 1.6. 1.6 मीन्स 5/3. 5/3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5 बाई स्मॉलेस्ट. 5/8 इज अवर स्मॉलेस्ट. And which one is greater 5, 3, 1.6 or 6? 6 is greatest. सब इनमें सबसे बड़ा है. 6 means 6/7. 6/7 is our largest fraction. तो यही क्वेश्चन हमने जो स्कूल लेवल पे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं उससे निकाला तो कितना लेंथी था, वहां से भी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट निकाल सकते हैं. और वही अगर हमने शॉर्ट ट्रिक से किया, शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को किया तो ओनली हार्डली 2 मिनट हमें लगे. 2 मिनट तो लगे भी नहीं है. ठीक है. तो 5/8 इज आवर स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट इज 6/7. अगेन आई एम रिपीटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट न्यूमरेटर एज इट इज. न्यूमरेटर को हम एज इट इज राइट करेंगे. डिनोमिनेटर में हम इनके डिफरेंस को राइट करेंगे. फिर जो नंबर स्मॉलेस्ट है वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी और जो लार्जेस्ट आता है वो हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा. सो इस वे से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे. स्कूल लेवल वाला मेथड हम अप्लाई नहीं करेंगे, अदरवाइज हम एक क्वेश्चन में ही बैठे रहेंगे. हमें 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं. 30 में से 15 क्वेश्चन फ्रॉम अवर कंटेंट एंड 15 क्वेश्चन फ्रॉम पेडागोजी जो हमें सोल्व करने होते हैं. सो इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन टॉपिक ऑफ ऑन दिस टॉपिक फ्रैक्शन. सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.